So this is our 10th lecture on the topic, that is chapter number 2nd, mathematical methods of 11th science of Maharashtra board. Okay, and in today's lecture we are discussing the proof of properties of vector product. In last lecture we have discussed the properties of vector product, and in today's lecture we are discussing its proof, how you can prove the particular property. Now the first property is vector product of two vectors is a vector, and you have to prove this property. It is a silly question, एकदम थर्ड क्लास क्वेश्चन आहे, पण तरी प्रूफ आपल्याला द्यायचा आहे. ओके, वी आर गोइंग टू प्रूव्ह दिस. So let us consider two vector, vector A and vector B, making an angle theta with each other. Let the smaller angle between them is say theta. Okay. Now, as per the definition, vector A cross vector B will be equal to a vector. हे आपल्याला माहितीच आहे. पण as per definition, you can write this. This is the resultant having magnitude this much, magnitude of first into magnitude of second into sine of the smaller angle between them. So AB sin theta, this is magnitude of resultant, and the resultant's direction is perpendicular to both. त्या दोन्ही वेक्टरला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन ही रिझल्टंटची डायरेक्शन असते. सो दिस युनिट वेक्टर gives the direction of resultant vector and it is perpendicular to both. To both means to vector A as well as to vector B. So now in this figure we are finding A cross B. So as per right hand thumb rule, turn your right hand fingers from A to B so that the stretched thumb will represent the resultant. So that's why resultant A cross B will be in this direction. Means in this direction the unit vector will be. This unit vector will be in this direction, perpendicular to both as per right hand thumb rule, and this right hand side represents a vector, and it as it represents a vector, so we have proved the property. In this way you can prove that silly property. The second property is vector product of two vectors do not obey commutative law or commutative property, and we have to prove this. So for this, let us consider this to be vector A, this to be vector B in this plane. In the horizontal plane, say. Okay. Then tell me in which direction the resultant A cross B will be. A cross B की direction कौन सी होगी? So as per right hand thumb rule, the direction will be, consider your right hand, curl your fingers from A to B, so that resultant will be directed in a downward direction. So this is resultant A cross B. Okay, इस दिशा से A cross B होगा. Now in which direction B cross A will be? B cross A कौन से डायरेक्शन से होगा? तो B के तरफ से A के तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करो, यानी घुमाओ. जिस डायरेक्शन से थंब है उस डायरेक्शन से रिजल्टेंट होगा, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन से रिजल्टेंट होगा. मीन्स रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. उसको मैं वेक्टर एस बोलता, यस बोले तो बनेगा वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए. ओके, नाउ look what I am trying to say. If you made A cross B, then you will get a resultant in downward direction. So A cross B will be in this direction, resultant will be in this direction. And if you find B cross A, then the direction of B cross A will be in upward direction as per my figure. Huh? Okay. Now let theta be the angle between them. So you have to prove that cross product do not obey commutative law. Means we have to prove
ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है भैया। सो फर्स्ट आई विल फाइंड ए क्रॉस बी. A cross B will be, it is a vector having magnitude of first into magnitude of second into sine of the smaller angle between them into a unit vector in the direction of A cross B. A cross B के डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर, ये A cross B को अपन ने वेक्टर R बोले हुआ है, तो इसके डायरेक्शन से जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो रहेगा UR. ओके, नाउ ए क्रॉस बी मिलेगा अपने को इस डायरेक्शन से और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी, ए बी साइन थीटा, इतनी उसकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड रहेगी ए क्रॉस बी की. नाउ वी आर फाइंडिंग बी क्रॉस ए. बी क्रॉस ए एज पर डेफिनेशन, पहले की मैग्नीट्यूड बोले तो बी, सेकंड की मैग्नीट्यूड बोले तो ए, इंटू साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम बोले तो साइन थीटा, बराबर है बी ए साइन थीटा. और अपने को डायरेक्शन भी बतानी है, और डायरेक्शन बताने के वास्ते अपन यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, बराबर है. यूनिट वेक्टर इज यूज फॉर टू पर्पसेस, टू सेपरेट द मैग्नीट्यूड फ्रॉम डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन. सो अपने को इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, उसके लिए मैंने यूनिट वेक्टर लिया यू. अब बी क्रॉस ए अगर अपन ने किया, बी क्रॉस ए किया तो रिजल्टेंट कौन सी दिशा से मिल रहा है अपने को मिल रहा वेक्टर एस की दिशा से, माने इस दिशा से रिजल्टेंट मिला, माने इस दिशा से अपने को यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, उसको मैं यूएस बोलता, यूनिट वेक्टर यूएस. अब देखो, जो दो वेक्टर मिले अपने को, ए क्रॉस बी बनाने के बाद इस दिशा से वेक्टर अपने को मिला, बी क्रॉस ए करने के बाद इस दिशा से वेक्टर मिला, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, हाँ एक ही दिशा से नहीं है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. लेकिन क्या, ये मैग्नीट्यूड अगर अपने देखे तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है. मींस ए क्रॉस बी बनाने के बाद जो वेक्टर अपने को मिलने वाला है उसकी मैग्नीट्यूड, और बी क्रॉस ए बनाने के बाद जो वेक्टर अपने को मिलने वाला है उसकी मैग्नीट्यूड, बोथ आर सेम. मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट. सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट मींस दे आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर. माने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सर मैग्नीट्यूड सर की है, डायरेक्शन सर की नहीं, माने ये दोनों सर की नहीं, बोथ आर नॉट इक्वल. सो वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एंड दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी. कौन सा पॉइंट अपन ने ध्यान में रखा, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की मैग्नीट्यूड दो सेम, डायरेक्शन इज डिफरेंट, so these two vectors are different vectors, and as these two vectors are different, so they cannot be same. So that's why A cross B is not equal to B cross A. The third property is vector product of vector with itself is a null vector. माने उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट बनाया तो अपने को रिजल्टेंट नल वेक्टर मिलता है, ऐसी प्रॉपर्टी है, और वी हैव टू प्रूव दिस. नाउ लो, कंसीडर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए. माने वेक्टर ए को मैंने वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट बनाया, तो क्या रहेगा, एज पर डिफिनेशन पहले की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे की मैग्नीट्यूड, पहले की मैग्नीट्यूड बोले तो ए, दूसरे की मैग्नीट्यूड बोले तो ए, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, and unit vector in the direction of resultant. As per definition, you can write mathematical statement like this. ये सबको पता है. Now look, theta is the angle between the two vectors, vector A and vector A. Vector A ने खुद से कितना एंगल बनाया, वेक्टर A खुद से कितना एंगल बनाया, 0. So theta is 0 degree, and as theta is 0 degree, we can write A into sine 0 into unit vector UR, and sine 0 is equal to 0. ये अपने को पता है, sine 0 is 0, so 0 into A, it becomes 0,
इंटू यूनिट वेक्टर यू आर। यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू ए, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड 0 इंटू 1, एखादे वेक्टर को अपन ने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी बनती है, स्केलर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो 0 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 0 इंटू 1 मीन्स 0, सो इट विल बिकम्स अ नल वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड 0 बनेगी, ये यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 बन जाएगी क्योंकि अपन ने उसको 0 से मल्टीप्लाई किया है, स्केलर से 0 से मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम्स नल वेक्टर। सो वेक्टर ए क्रॉस ए बनेगा नल वेक्टर एंड दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी। अपन ने शो किया कि उसी वेक्टर के साथ में अगर अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो अपने को क्या मिलता है, नल वेक्टर मिलता है। प्रॉपर्टीज, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। अपन ने बताया कि अपने को नल वेक्टर मिलता है। सो दिस प्रूव्स द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नोट्स ऑफ दीज पॉइंट्स विच वी हैव स्टडीड। ओके, we have studied three properties of cross product and their proof. Now the first property is vector product of two vectors is a vector and we have to prove this property. So for this proof we have considered, so let us consider two vectors, vector A and vector B. This is vector A, this is vector B. Then according to definition vector A cross vector B equal to, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहती है, पहली की मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो ए बी साइन थीटा, ये बन गई रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, दोनों को परपेंडिकुलर। देखो इस फिगर में ए क्रॉस बी निकाले ना अपन ने, तो ए क्रॉस बी बोले तो ए क्रॉस बी, ए की तरफ से बी की तरफ अपने को राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करने पड़ेंगे, रिजल्टेंट ऊपर की दिशा से रहेगा। सो रिजल्टेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, द RHS रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर, ये RHS जो है ये वेक्टर बता रहा है, हैविंग मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। बिकॉज ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर की दिशा कौन सी है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी को परपेंडिकुलर दिशा से ये यूनिट वेक्टर, इस दिशा से यूनिट वेक्टर है, आर की दिशा से। सो दैट्स वाई वेक्टर यू आर लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, एज पर राइट हैंड थंब रूल। सो दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी। ये बन गई पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये सेकंड प्रॉपर्टी अपनी को प्रूव करनी है। अब कम्यूटेटिव लॉ बोले तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये हो गया अपना कम्यूटेटिव। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करता है तो अपने को लिखते आता वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, अगर प्रूव करता है तो। लेकिन इसने क्या बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। माने अपने को प्रूव करना है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये अपने को प्रूव करना है। सो लुक एट दिस फिगर, दिस इज वेक्टर ए। अब मैंने वेक्टर ए ऊपर की दिशा से लिया, वेक्टर बी नीचे की दिशा से लिया है। ठीक है, अगर मैंने ए क्रॉस बी बनाया तो ए की तरफ से बी की तरफ अपने को फिंगर्स कर्ल करने पड़ेंगे। रिजल्टेंट मिलेगा मुझे ए क्रॉस बी का डाउनवर्ड डायरेक्शन से। और बी क्रॉस ए अपन ने बनाया, बी क्रॉस ए अगर अपन ने बनाया तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऊपर की दिशा से तुम्हारे को रिजल्टेंट मिलेगा। सो बी क्रॉस ए इट इज कॉल्ड एज वेक्टर आर, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड ए क्रॉस बी इट इज नेम्ड एज वेक्टर एस, इट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फिगर से आपको ख्याल आया होगा, ध्यान में बात आई होगी। ठीक है, नाउ वेक्टर ए क्रॉस बी एज पर डेफिनेशन यू कैन राइट magnitude of first into magnitude of second into sine of the angle between them into unit vector in the direction of resultant। और a क्रॉस b बोले तो कौन सा है, a क्रॉस b बोले तो वेक्टर s है, वेक्टर s की दिशा से यूनिट वेक्टर अपने को लेना पड़ेगा। सो ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर s, बराबर है डेफिनेशन के हिसाब से। ओके, नाउ अपन शोधते बी क्रॉस ए अगर अपन ने बनाया तो अपने को क्या मिलेगा, तो एज पर डेफिनेशन पहले की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब दूसरे की मैग्नीट्यूड उतनी है, पहले की मैग्नीट्यूड भी सेम है,
एंगल भी उतना ही है, यानी कि ये जो बी ए साइन थीटा है और ये जो ए बी साइन थीटा है दोनों सर क्या हो गए, यानी कि दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होगी। लेकिन रिजल्टेंट की डायरेक्शन, अगर अपन ने बी क्रॉस ए बनाया तो बी क्रॉस ए बनाया तो रिजल्टेंट ऊपर की दिशा से दिख रहा आपको, और ए क्रॉस बी बनाया तो नीचे की दिशा से रिजल्टेंट अपने को दिख रहा। नीचे ऊपर ऐसे में शब्द यूज कर रहा हूं फिगर के हिसाब से। हाँ, सो यू आर will be the resultant unit vector or unit vector in the direction of r। ये यू आर होगा ऊपर की दिशा से, ये यू एस होगा नीचे की दिशा से, यानी कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर अपने को मिलने वाला है वो इस दिशा से मिलने वाला है, और बी क्रॉस ए ये जो वेक्टर अपने को मिलने वाला है ऊपर की दिशा से मिलने वाला है, यानी कि दोनों सरीके नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ये बात ख्याल में रखो, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों एक के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ रिजल्टेंट इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, सो दैट वी कैन राइट वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, एंड दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी। ऐसे अपन ने प्रॉपर्टी प्रूव कर डाली। सेकंड, द थर्ड प्रॉपर्टी इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ, यानी कि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में अगर अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट बनाए तो इट इज अ नल वेक्टर, तो अपने को नल वेक्टर मिलेगा। ऐसी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी बराबर है या रॉन्ग है ये अपने को प्रूव करना है। सो लेट अस कंसीडर वेक्टर ए, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में अपने को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट माने मैग्नीट्यूड ऑफ ए, magnitude of second माने magnitude of a again into sine of the angle between them, say theta is the angle between them, let us consider, into ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ए क्रॉस ए बनाने के बाद में जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर की दिशा से ये यूनिट वेक्टर रहेगा। नाउ ए क्रॉस ए, ये थीटा क्या है, ये वेक्टर ए और ए में का एंगल, वेक्टर ए और ए में एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री, and sin 0 is 0. So sin theta माने sin 0 and sin 0 means 0. So it is a into a sin 0 की वैल्यू 0 into ur, ये बनेगा 0, a into 0 0 बन गया। 0 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, अपने को क्या मिलेगा, स्केलर टाइम्स मैग्नीट्यूड मिलेगी इसकी वेक्टर की। सो 0 टाइम्स 1 मीन्स 0। सो अपने को वेक्टर मिलेगा जिसकी मैग्नीट्यूड रहेगी 0, और जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 रहती है उस वेक्टर को अपन नल वेक्टर बोलते हैं। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये 0 के माथे पे एरो और बार, तुम एरो भी बता सकते इसको या बार भी बता सकते हो। यानी कि ए क्रॉस ए अगर अपन ने बनाया तो अपने को क्या मिल रहा, नल वेक्टर मिल रहा है। सो दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी क्या थी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर, अपने को मिल गया। अपन ए क्रॉस ए बनाया तो अपने को 0 मिल रहा, नल वेक्टर मिल रहा। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव द प्रॉपर्टी।